लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर खतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर खतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। Good evening, everyone. Good evening. We'll be starting in a minute or two. Just good evening, everyone. On the behalf of NSS unit of KPB Hinduja College of Commerce, I welcome you all to today's event. Today, we are gathered here on the virtual platform Zoom to celebrate Indian Navy Day. Indian Navy Day is celebrated to commemorate the launch of Operation Trident against Pakistan during the 71 Indo-Pak War and to recognize the achievements and role of Indian Navy to the country. Before starting with the event, I'd like to play the Indian National Anthem, and I request you all to stand up in respect of our national anthem.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Welcome again. We have our PO, Dr. Gayatri Agarwal with us. I'll request her to address the event. Gayatri ma'am, over to you. Yeah, thank you, Dhanashri. A very good evening and warm welcome to respected Lieutenant Vijay Nair sir and my dear NSS volunteers. Sir, we welcome you on such a auspicious day that is Indian Navy Day. Sir, it is because of great personality like you and our Indian Navy, the citizens of India are safe, protected, and can live our life peacefully, sir. Sir, on behalf of everyone, we salute your courage, sacrifice, and professionalism. So it is our great honor that esteemed personality like you accepted our invitation and will address the gathering and share your valuable experience with us. So now I do not want to become a hurdle between you and the audience, and our students are very much eager to hear you, sir. So most welcome you, sir, for this session. Sir. I'd like to introduce you to our speaker of the day, Lieutenant Commander Vijay Nair sir. He is a decorated Indian Naval officer, ultra-marathoner, Comrades 2019 finisher, author, blogger, humorist, anchor, motivational speaker, storyteller, and a thyro athlete. He is a decorated Indian Naval officer and a war veteran. He is decorated with Operation Vijay, popularly known as Kargil War Medal, Operation Prakaram Medal. In 1999 was a part of Operation Talwar. There is a lot to tell about him and so little time to hear. I'll now request Vijay Nair sir to take over and introduce himself and tell more about him. Over to you, sir. Yeah, hello. Can you hear me? Yes, sir. Am I audible? Yes. Yes. Am I visible also? Yes. 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 Okay. So, yeah. So first of all, thanks to Gayatri ma'am for inviting on this forum and telling about me. Thanks to NSS Hinduja. Thanks to Dhanashri you, and thanks to Ashmita who was interacting with me. So first of all, happy day to all of you. Happy Navy Day to all of you. And my language of instruction would be both Hindi and English. I hope since you all are from Mumbai, so it would be fun to interact in English and Hindi. क्योंकि मैं बम्बई से हूँ तो मेरी हिंदी बम्बईया हिंदी होगी तो so you have to bear with me for that. How much time do I have? Because this is my third session today, so I need to. I'm still in office, so how much time do I have? We have given the time from 6:30 to 8, so accordingly we can adjust. Okay, perfect. Okay, guys, मेरी कहानी सुनना चाहोगे? Yes. So my story, I would request couple of you to come on video. नहीं तो मुझे ऐसे लगेगा मैं पत्थर से बातें करता हूँ. होता है ना अपने आप से बातें करना. ये Zoom और team meeting के ज़माने में, if I don't see people, I get bit worried. नहीं तो मुझे लगेगा अरे सब गाली दे रहे हैं क्या रे चल यार क्या पकाने आ गया types,
It's not like that. So sorry to interrupt, but we teachers also feel the same, sir. No, I understand, ma'am, because I have a teenage daughter. She's 15 years old. So I can see a lot of things happening at my place also in the morning. And, काफी time मेरा और उसका बहुत झगड़ा, like father and daughters are always close, no? So she's my biggest critic and very closest friend. So हम दोनों लड़ते रहते हैं ये सब issues लेके, ये वाली. So, okay. So guys, मेरी कहानी जो है, my story is a story of belief. My story is a story of dream. My story is a story of all of you, you know. तो जब मैं बोलूँगा, आप सब अपने आप में मुझको देखो कि अगर ये बंदा ऐसे हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, तो why can't we, you know? And since you are a millennial, you are the youth of this generation, you are much intelligent than people like us. You have a lot of opportunity, and कहानी से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप सब कर सकते हो, you know. So thanks for introducing a lavish introduction. So I'll just give you my background. Yes. So by education, I'm an engineer. I'm a BTech in instrumentation and controls. I'm an MTech in missiles and weapon controls. And I'm a MBA from Jamnalal Bajaj, Mumbai, and MBA from Narsi Monji. And currently I'm pursuing my PhD, though I'm working. So I was with Indian Navy for 10 years, 1999 to 2009. In last 12 years, I'm with the ministry. By age, I am 44th. December 12th, I'll be completing my 44th age. And by rank, I'm vice president in this company. And I'm an author, 3 books done, 2 more books to go. Is in this thing. I'm a blogger, I'm a publisher, and storyteller. I'm an ultra marathoner in fact. I'm an anchor, I'm a humorist, motivational speaker. ये सब आप सब बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई तोप तलवार कुछ नहीं, हम सब में है, कहीं ना कहीं हम सब में है, हम दर्शाते नहीं है कहीं पे, you know, we don't express that thing. So all of us have capabilities, and this thing, only thing is all of us should know कि कब ये एक स्ट्रेंथ को बाहर लाना है. सो नथिंग ग्रेट अबाउट इट. 3 इडियट्स कितने लोगों ने देखा है? 3 इडियट्स मूवी देखी होगी ना, सभी ने देखे होंगे, राइट? या ऑल ऑफ यू वुड हैव सीन 3 इडियट्स. सो 3 इडियट्स, उसमें एक बहुत प्यारा सा सीन है, यू नो, व्हेन आमिर खान इज एक्सप्लेनिंग शर्मान जोशी, जब वो बोलते हैं ना, व्हेन ही गोज इनटू डिप्रेशन एंड ट्राई टू कमिट सुसाइड एंड ऑल द स्टफ, यू नो. So we are the product of sperm and egg, right? और वो एक sperm जो सबसे पहला भागता है, जो egg को fertilize करता है, and then come we, right? So हमने जिंदगी में, as he says, already we have won the race. We don't have to prove to anyone. So first lesson from my talk is all of us are special. Take it for granted. हम special है इसलिए. अब जब हम बाहर आए, दुनिया में आए, so we have to, we have to live for a certain number of years, and someday we won't be there. So between this life and death, we have to do something. ये नहीं कि आए, पैदा हुए, थोड़ा रहा, मर गए. That is not life, you know. So I will tell you one golden word, a quote, which all of you should remember. It is called experience, the experience of experiencing an experience. Experience the experience of experiencing an experience. गली बॉय देखी है? गली बॉय मूवी, उसमें बोलते हैं ना, बहुत हार्ड है करके, हार्ड इच है एकदम, हार्ड लगा ये, एंड दिस इज माय स्टोरी, यू नो. सो आज मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में मेरी स्टोरी. एंड आई वाज बोर्न इन, आई एम अ मलयाली, केरलाइट, but born and brought up in Mumbai, Mumbai. So mere father, I'll just give you a history of my father. He was from a very affluent business family in Kerala, and then but typical Malayalis कैसे communist होते हैं ना, उनमें communist ideology होता है, नहीं father का business होगा तो नहीं join करूँगा, मुझे अपना खुद करना है. So he ran away from home, late 60s, ran away from home. Now
Now the biggest thing was learning number one in your life. He never believed in education. उनकी फैमिली रिच थी तो कभी पढ़ाई नहीं की, you know. फिर जब ये ऐसे जब टाइम आया तो he has to run away from his house, केरला से भाग के बॉम्बे आए, पढ़ाई नहीं थी. So education is the most important thing, and there is no age for education. You know, even today I'm studying at the age of 44. When my daughter is also studying. So education is one thing. You have to love education. Keep on upgrading. So मेरे फादर ने वो नहीं किया. And when he came to Mumbai, कोई नहीं था, रोड पे सोते थे, पांचवी पास, and you know how it works. And वो खुददार थे, he never wanted to go back to his house, so he took up the job of a driver, car driver होता है ना, taxi driver. But he realized कि इससे कुछ नहीं होगा, because he used to sleep on road for few days, फिर किसी ने सहारा दिया ऐसे. And then he started doing some technical course, ITI जो होते हैं ना, electrician. So he became an electrician. So जो कंपनी में वो ड्राइवर थे वहीं पे टेक्नीशियन बन गए. And thus started the journey of us, you know. So I always tell him कि मैं तुम पे केस कर दूंगा अब जब हम बैठते हैं कभी मस्ती करते हैं. You know, my father is 75 years when we talk, because this guy married my mother, who was, now कोई हंसना नहीं, कोई भी हंसना नहीं. अब मैं कुछ बोलूंगा like trust me, my mother was 14 years old when she got married. Child marriage बोलते हैं ना. My mother was 14 years old, and when I was born, I'm the eldest of the 3 siblings. So she was 16 years old. So my mother and me, we have a gap of 16 years. So मेरी बड़ी बहन लगती है. So luckily she was into sports and all. So genetically she's strong. उनके एक भी 60 साल हुए अभी, एक भी बाल काला सफेद नहीं है. तो luckily at 44 even I don't have. So I hope it continues that way, you know. नहीं तो फिर बोलेंगे अरे बुढ़ा आ गया. So one interesting fact, I went to मेरी जब किताब आई थी उस पे होता है ना लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर. So once we leave Navy, we have to write retired as a protocol. And my daughter took my book to her school. She reads in Airoli, NH, New Horizon Public School. तो वहाँ टीचर ने उसको बोल दिया, उस टीचर को बड़े शान से बुक दिखाई, सी मेरे पापा का बुक है करके. टीचर ऐसे थी कि यंग टीचर थी कोई, तो देखी ऐसे तो बोले अरे तुम्हारे पापा इतने ओल्ड है क्या, रिटायर्ड हो गए करके. एंड शी केम बैक एंड गेव मी थ्रैशिंग ऑफ माय लाइफ. बोला यार रिटायर्ड क्यों लिखना था लाइफ में, यू नो. So such is the beautiful journey. So my father, as I said, you know, education was one very important thing नहीं थे. तो I am from Bhandup, you know the place Bhandup in Mumbai. So I was born and brought up in Bhandup, you know. Now I stay at Mulund, in a place called Mulund. I'm sure आप सब बॉम्बे से जानते होंगे, निर्मल लाइफस्टाइल मॉल एंड ऑल, यू नो, उसके बाजू में रहता हूँ अभी फिलहाल. So my growing up days was in Chawl. मुंबई की चौल होती है ना, गली बॉय देखे हो. मुझे कोई शर्म नहीं. I have spoken in many forums, some, you know, 500 plus talks in various forums. So I am a gully boy, you know, hardcore. Now my journey is from a gully boy to a naval officer from the Indian Naval Academy to an author to whatever, you know. So जब हम वहाँ रहते थे, Chawl and all, you know, हमारी the place I used to stay was 110 square feet. घर जहाँ घर चालू होता था वहीं खत्म होता था, you know. सुबह के दिन वो हॉल होता था, बेडरूम भी वही, किचन भी वही, एवरीथिंग टिपिकल मुंबई Chawl. But that never allowed us not to dream. So my story is a story of belief. My story is a story of dreams. जब आप सपने देखते हैं ना, सभी को सपने देखना चाहिए. सपने आंख बंद करके वाला सपना नहीं कि तुरंत वो निकल गया करके. सपने ऐसे देखो जो एपीजे कलाम साहब बोलते थे ना, ड्रीम एंड चेज दैट ड्रीम, यू नो. So that was our story. So my mother always believed in education. She said only education will save us. Only education will uplift us. Uplift is you have to move in society, na, straight out society. So we जब हम चौल में बड़े हो रहे थे, we never regretted because that was a beautiful life. We had a lot of friends there. But कहीं ना कहीं वो थी, economically we were weak. Father was working as a technician, पैसे नहीं थे, frankly speaking, you know. We are 3 siblings, all 3 brothers. तो हमारे
you know, I'm not here to tell you a story of मैं कितना गरीब था. I'd never believe in that. Never ever self pity you. Learning number 2 life में, कभी अपने आप पे self pity मत करो कि you know मैं गरीब हूँ या मोटा हूँ, मैं पतला हूँ. Bullshit. Everything is bullshit. So be positive about life. The moment you do self pity, you have lost your battle there. Understood? So बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है जो यू नो झोपड़े में हुआ है, जो हट में हुआ है, जो चॉल्स में हुए. नथिंग स्टॉप्स एनीबॉडी, राइट? तो हम लोग जब चॉल में थे, एंड देन आई वाज एजुकेटेड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल. एक ट्रस्ट का स्कूल था, मलयाली ट्रस्ट, जहां पर हम इंग्लिश बोलते ही नहीं थे कभी. यू नो, जिस दिन किसी ने इंग्लिश बोल दिया सब ताली बजाते थे कि अरे अंग्रेज आ गया करके. टिपिकल मुंबई में हम ऐसे पले पड़ते हैं ना, अरे अंग्रेजी बोल रहा है करके, साहब अंग्रेजी बोले करके. एंड वी वेर इंग्लिश मीडियम स्कूल. इमेजिन, टीचर इज टेलिंग समथिंग. द ओनली टीचर यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश वाज इंग्लिश टीचर. बाकी सब लोग ऐसे यू नो पीटी सर, वो आ रेला है, जा रेला है, ठोक रेला है, मार रेला है, वैसे वाला लाइन. आई वाज फ्रॉम हार्डकोर दैट. बट सबको सपने देखना चाहिए. तो मैंने भी एक सपना देखा, बिकॉज माय मदर ऑलवेज सेड एजुकेशन, बिलीव इन योर एजुकेशन, and that is only one thing which changes you, which will change you. मेरी इंग्लिश की कहानी मैं बाद में बताऊंगा. So how I dreamt, how Navy happened, you know. So that time I'm the kid of 80s and 90s. तभी दूरदर्शन होता था, you know. अभी कैसे Amazon, Netflix, and you name it, you have anything, you know. कितने लोगों ने लूडो फिल्म देखी है? देखा है ना? लूडो फिल्म नहीं देखी नेटफ्लिक्स या Amazon पे? उसमें एक गाना है, वो बेटा जी करके, विल बी हियरिंग इट. तो हमारे जमाने की गाना होता है, हमारे जमाने के एक जमाने पहले. सो वी वेयर ऑफ दैट दूरदर्शन टाइप्स. तो दूरदर्शन में 2 चैनल होते थे, DD1, DD2, यू नो, एंड नाउ यू हैव प्लेंटी. सो दैट टाइम एक सीरियल आता था, फौजी. शाहरुख खान यूज्ड टू बी देयर, यंग शाहरुख खान, फर्स्ट टाइम ना. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन दे यूज्ड टू टेल अबाउट द आर्म्ड फोर्सेस, फौजी कहानियां. एंड I got very impressed with the stories, you know. तभी लगा यार जाना है तो फौज में जाना है, you know. And then there used to be a TV serial आता था, परमवीर चक्र. So this was my motivation. But the problem was, who will guide us? कौन बताएगा कि फौज में कैसे जाना है? तो हमारे स्कूल में भी किसी को ज्यादा पता नहीं था. Everyone wanted to help you, you know. When we used to ask our teachers कि फौज में जाना है, poor things, that time Google होता नहीं था. And they would say कि we will try to help you find out, but unfortunately school इतना छोटा था, तो you know surroundings इतनी छोटी थी, nobody used to help. But the best part happened was, so where I used to stay, बाजू में एक नेवल कॉलोनी है, नेवल सिविलियन कॉलोनी, पवई, you know, कांजुरमार्ग में. If you come out of कांजुरमार्ग, so there is a naval civilian colony. जहाँ नेवी में कैसे यूनिफॉर्म वाले लोग होते हैं और सिविलियन होते हैं, तो सिविलियन की कॉलोनी थी. अब ये खास बात क्या था, एकदम पॉश कॉलोनी है, यू नो, एंड दे हैव स्विमिंग पूल एंड एवरीथिंग. एंड वहाँ क्रिकेट का ग्राउंड होता था. क्रिकेट की ग्राउंड से बहुत यादें जुड़ी है, बहुत पनिशमेंट मिला उस पर. हम लोग सिविलियन थे, हार्डकोर सिविलियन, मतलब जिसके आसपास भी कोई फौजी नहीं थे लाइफ में, यू नो. हमने सिर्फ फौजियों को सिर्फ टीवी में या ऐसे देखा था. सो फॉर प्लेइंग क्रिकेट इन मुंबई, यू नो हाउ टफ इट वुड बी, बिकॉज देयर इज नो स्पेस. वी प्ले इन गली एंड ऑल. तो जब हमको क्रिकेट खेलना होता था तो हम नेवल कॉलोनी के दीवार फांद के जाते थे, एंड वी यूज्ड टू नो कहाँ से जा सकते हैं अंदर. ओके. सो जब भी जाते थे, 2 महीने में, 1 महीने में एक बार हम पकड़े जाते थे. नेवी वाले घूमते थे तो पकड़ के मुर्गा बनाते थे. अभी मुर्गा बताया आपको, मुर्गा पोजीशन मालूम है ना, पनिशमेंट वाला पोजीशन, मुर्गा. सो मुर्गा इज अ वेरी रेस्पेक्टेड थिंग इन आवर लाइफ, क्योंकि आगे चल के नेवल एकेडमी में मुर्गा को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है, बिकॉज आप मैक्सिमम टाइम मुर्गा में रहते हो पनिशमेंट में, यू नो, हाथ के नीचे ऐसे मुर्गा, टिपिकल. बैंड बजती है पर ठीक है, यू नो. सो हमको भी वो लोग पनिशमेंट देते थे, दे यूज्ड टू मेक अस रन ग्राउंड. बट द बेस्ट थिंग वाज वी यूज्ड टू प्ले. 30 दिन में अगर एक दिन पकड़े जाते तो ठीक है ना, सैक्रिफाइस, दैट सैक्रिफाइस वाज फाइन. तो ऐसे चलता रहा सिलसिला, पकड़े जाते थे कभी. लेकिन once what happened, there was this special inspection by Navy, और उस दिन नेवल ऑफिसर्स जो सफेद कपड़े पहन के, they came, you know, they came, और
सफेद यूनिफॉर्म वालों ने हमें पकड़ा उस दिन। एंड जब पकड़ा ना तो इट वाज लाइक मुझे और कुछ नहीं दिखाई दिया कि ये पनिशमेंट देने वाले नहीं देने वाले। So the best thing was for me it was that white uniform, जो अट्रैक्ट किया कि यार ये क्या चीज है करके, यू नो, इसमें सब लोग अच्छे दिखते हैं करके. So I had that belief. My strong belief was anyone can be beautiful and handsome if you wear this uniform. That was my belief, you know. And that triggered my ambition कि जाना है तो नेवी में ही जाना है. बहुत लोगों को होता है कि आर्मी में जाना है, बट मेरा फंडा एकदम क्लियर था, बॉस जाना है तो इसी में जाना है. Then started the hunt कि अब जाएं तो कैसे जाएं. Guiding, there was no one to guide. Then someone said कि मेरे चाचा मामा का someone is there in Navy and you know, तब पनवेल में होता था. पनवेल used to be very far that time. अभी तो कैसे लोकल ट्रेन सब है ना, पनवेल पहुंचने 3 घंटे लगता था. So 9th स्टैंडर्ड में आई रिमेम्बर एक दिन स्कूल बंक मार के, घर पे नहीं पता किसको, यू नो, घर पे टिपिकली होता है ना बंक. तभी तो बंक मारना वाज नॉट एट ऑल अलाउड. अभी तो फैशन है कि अभी बंक नहीं मारे तो कैसे चलेगा लाइफ, है ना, तो वैसे वाला, यू नो. स्कूल बंक मार के गए और 3 hours ट्रैवल करके वी मेट दैट वन अंकल. किसी का अंकल था, ही वाज अ नेवल ऑफिसर. सो लर्निंग नंबर 3, it is very very important to have a mentor in life. Mentor, someone who can guide you, you know. Always choose a mentor, कोई भी हो, online offline, teacher, friends, कोई भी हो, you should have a mentor. Okay, so he was my first mentor. उसने मुझे बहुत ज्ञान दिया कि ऐसे ऐसे कर सकते हो, you can go through NDA and all. बस इतना ही limited knowledge लेके I came home and luckily वो bunk मारा पता नहीं चला किसको, तो रह गया. And then when I told my father that I want to join the armed forces, Navy जाना है, तो उनका पहला, as I said, पैसे नहीं होते थे घर पे, स्कूल के फीस के वांदे होते थे एकदम, you know. 30 rupees used to be fees, बट कभी कभी वो भी टाइम पे नहीं भर पाते थे. तो स्कूल में कैसे टाइम पे नहीं भरते थे ना, तो बाहर खड़ा करते थे, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बोलते थे ना, मतलब हमेशा बाहर रहना. और अपन वहाँ बाहर खड़ा रहना अच्छा लगता था, क्योंकि बाहर ग्राउंड में सब दिखते थे, किसी स्कूल का पीटी चल रहा है तो लड़के लड़कियां होते, तो हम सब वहीं गाला मार के बाहर देखते थे. सो स्कूल का फीस मेनी टाइम वी कुड नॉट पे ऑन टाइम. सो ऐसे में व्हेन आई टोल्ड माय फादर आई वांट टू जॉइन एनडीए, तो पहला तो शॉक लगा उनको, बोला यार, यू नो, ही हर्ड मी एंड ही सेड हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू जॉइन एनडीए. आई सेड कि पैसा नहीं चाहिए, सेलेक्ट हो गए तो सब कुछ फ्री होता है, योर एजुकेशन से लेके फूड एवरीथिंग, यू आर देयर 4 years and then you become an officer and move out. ये उनको क्लिक हो गया. तो उसकी बात होता है ना, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, सुना है कहावत, तो वही हो गया. आई टोल्ड हिम दिस थिंग एंड ही वाज आफ्टर माय लाइफ. लब तो तू बन के रहेगा करके, यू नो, बिकॉज वहां सब कुछ फ्री में होता है. एक बच्चे का मेरा टेंशन खत्म, तो यू ब्लडी विल स्टडी कर. पीछे पड़ गए यार एकदम. तो फिर वो, यू नो, बट लकीली दैट हैपेंड. So I was good student, decent student, you know. हमारे जमाने में 83, 84, 85 used to be a big percentage. अभी कैसे, अभी 99.99 मिला तो ठीक है, उसके नीचे सब is average, you know. अभी के जमाने में ऐसे है ना. So my daughter is also going to appear for 10th. So today's generation. So I got 84%, and then you know, so I prepared for my NDA. Now comes the 2. तो मैंने वो सपना देखा, I had the dream, I had belief in me कि हो जाएगा, and I studied for it. So I cleared my NDA exams, and NDA के बाद what happens ना, when you go for NDA, उसके बाद it is the toughest interview in India. After IIT and all is more of technical. This is 5 days interview. After your written exam, you clear the written exam, then you go for 5 days of SSB interview. Okay, तो 5 days of SSB interview, they screen you in and out. वो आपकी पर्सनालिटी को पूरा ऊपर से नीचे पूरा अलट पलट कर देते हैं. एंड देन दे हैव टू फाइंड दैट पर्सनालिटी कि आप फौज के एंगल से बैठते हो कि नहीं करके, राइट. सो बस आई वाज देयर इन SSB एंड आई वाज वेरी वेरी ओपन. सी SSB में क्या होता है, यू हैव टू बी रियली रियली ट्रांसपेरेंट. अगर वो मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछे तो अगर मैं बोलूंगा, सी एक सबको ये होता है ना, बिलीव टू ऑल ऑफ यू, ऑल दोज हु आर लिसनिंग टू मी, नेवर एवर शाई फ्रॉम योर लाइफ.
छुपाओ मत, you know. अगर मैं शान से बोलता हूँ, if I was from the Chauls, I always say in all the big forum I've gone international, 15 countries में बात कर चुका हूँ, जाता हूँ, always say that. So never ever be shy about who you were, you know. You always have to express that. SSB में they try to find out that, you know, and I was very true to myself. And मुझे पूछा कि why you want to join Navy? So many series things happen there, various around. So I told them, यार मुझे यूनिफॉर्म, आई लाउड यूनिफॉर्म, दैट्स व्हाई आई वांट टू. सो द पर्सनल इंटरव्यू जो ले रहा था, ही वाज शॉक्ड. बोलते क्या सिर्फ यूनिफॉर्म अच्छा लगा, दैट्स व्हाई यू वांट टू जॉइन नेवी? आई सेड यस सर करके. एंड देन ही वाज कि देश को सेवा करना. टिपिकल आंसर ये होता है एसएसबी में, मुझे देश को सेवा करना है, पाकिस्तान को मारना एंड ऑल, यू नो, ऑल दोस थिंग्स. दिस इज द स्टैंडर्ड आंसर. एंड आई वाज वेरी क्लियर. बोला कि यूनिफॉर्म अच्छा लगा इसलिए जाना. तो बोला क्यों अच्छा लगा? तो बोला कि यू नो इंसिडेंट्स नेवल ग्राउंड में पकड़े थे, तो यू नो कहीं ना कहीं ऐसे था कि यूनिफॉर्म में लोग अच्छे लगते हैं. तो इट वाज अ वेरी क्लियर एंड यू नो दिल से आंसर्स. एंड व्हेन द नेम वाज अनाउंस्ड आफ्टर फाइनल सिलेक्शन, तो माय नेम वाज देयर इन दैट. ओनली 4 पीपल गॉट सिलेक्टेड. सिलेक्शन रेट इज वेरी वेरी लेस, यू नो. तो 4 लोग हम सिलेक्ट हुए. एसएसबी के 5 दिन इंटरव्यू के बाद 5 दिन का मेडिकल होता है. एज आई सेड, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यूज ऑफ इंडिया. 5 दिन के मेडिकल. अब देखो, नाउ कम्स दी क्रैशिंग ऑफ ड्रीम. सपने टूटना देखा है ना आपने, सुना होगा सपने कैसे टूटते हैं. यहाँ मैंने एक ड्रीम दिया था कि आई वांट टू जॉइन एनडीए. एवरीथिंग वाज हैपनिंग एज पर दैट. एंड हियर इन माय मेडिकल 4 दिन मेडिकल हो गए. 5वें दिन लास्ट डे वाज द आई का कुछ था, बिकॉज यू नो आई थॉट एवरीथिंग इज क्लियर्ड, आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग. आईज में उससे पहले कभी प्रॉब्लम आया भी नहीं था, चश्मा नहीं था, कुछ नहीं. बट उस दिन अनफॉर्चुनेटली जब आंखें टेस्ट हुई, so there was this issue with my eyes, you know. Even I was not knowing. So there was a correction factor of 6/6. ग्लास लगाते ना, वो नहीं आ रहा था मेरे आंखों में. And it was a very minor and a border case. चाहते तो क्लियर कर सकते थे, but they were very very strict. And then I got a medical rejection. And they told me कि you can appeal to board. There is a medical board. वो लोग ने क्लियर कर दिया तो आप चले जाओगे करके. But then वो मेडिकल बोर्ड के लिए you had to go somewhere, पैसे खर्चा करना था, to which my father was not ready, you know. And then I left it at that. There came the dream crashing, you know. पूरा ड्रीम जो बोलते हैं ना, सपना. आप एक कहावत है हिंदी में, मुंह में निवाला दे के निकालना होता है ना, ऐसे कोई देता है मुंह से और निकाल के ले. So everything was gone, you know. Learning number 4, life, have a plan B always. You should have a plan B, you know. Anything and everything you should have a plan B. I was never having a plan B. मुझे ऐसे इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था somewhere कि I was knowing कि मैं select हो जाऊंगा. I never had a plan B. And I went into depression for some time, you know. So समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, because ये dream, everything is gone. And हमारे टाइम ऐसे था कि financially also there was no question of taking a drop and trying again. Nothing. Father said move on, you know. So 2 option थे. एक तो था BSc करना और एक तो था engineering. I had a decent mark in 12th. Now my father's फंडा, interesting फंडा. अपने डैड का क्या कहना था, यार BSc करोगे 3 साल में हो जाएगा, इंजीनियरिंग करोगे तो 4 साल में होगा, तो why to waste 1 year for being a graduate? करो ना, BSc करके खत्म करो. So you know, because he was more worried about the money factor. Obviously he has to, because दो और बच्चे थे. But बहुत convince किया, and you know, one of my friend convinced him कि let him do engineering. Luckily mark था, तो बहुत सारे trust होते हैं who help student. You know, there are a lot of trust who help student. I mean, there is NACO and there is so many other trust. So मेरे पास फीस नहीं था इंजीनियरिंग के लिए. 4,000 used to be our free seat fees. I never had, you know. Father could only say कि I could only help you with 2,000. बेचारे बहुत ट्राई किए, but you know, नहीं था पैसे, simple. So I studied from a trust. Trust helped me. उन्होंने फीस वगैरह अरेंज किया, तो every year they used to arrange. And college was a bit far, so I used to stay in a hostel. So they used to help. So dad used to send some money. But वही, you know, वो बोलते हैं ना, चर्बी आ जाना. एक बार वहां जाते हैं हॉस्टल में, जाने के बाद पता नहीं क्या होता है, बौरा जाते हैं लोग ना. तो मुझ में भी वो आया, वो टिपिकल इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट, यू नो. समवेयर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा ये हो गया, मजे करने लग गए लाइफ में. फिर
एटीकेटी होता है, आई डोंट नो आप लोग के एटीकेटी सुना है? एटीकेटी होता है ना, मराठी मध्ये काय सांगतात, आता तरी कधीतरी, हम लोग इंजीनियरिंग में बोलते आता तरी कधीतरी, एक सब्जेक्ट है, देखते हैं कभी पास होते हैं करके, यू नो. सो सेम थिंग हैपेंड. पहला साल पूरे मौज मस्ती में गया इंजीनियरिंग, बहुत सारी केटीज लग गई. अब प्रॉब्लम ये था, वो नेक्स्ट ईयर जाने के लिए वो केटी भी क्लियर करना है और भी पढ़ाई करना है नेक्स्ट सेम का. सो मेनी थिंग्स हैपेंड, यू नो, क्योंकि गोल नहीं था, सारे एम्बिशंस खत्म हो चुके थे नेवी के साथ. Then when we were in third year, तभी किसी ने बोला कि नेवी हैज कम अप विद अ शॉर्ट सर्विस टेक एंट्री, यू नो, फिर से आप नेवी जा सकते हो, आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, फिर से उस पाक जगह, यू नो, फिर से वो गोल कि यार फिर से आया करके. वो बोलते हैं ना, कौन सा डायलॉग है ओम शांति ओम में, कौन बोलेगा डायलॉग? शाहरुख खान बोलता है ना, कौन सा डायलॉग है अभी मेरे कंटेक्स्ट में, कौन सा डायलॉग है, कोई तो बोलो. दैट मीन्स तुम लोग पिक्चर नहीं देखते हो यार. यस, देखो किसी अंकित शर्मा, यस, किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात एक हो जाती है उसको पूरा करने, राइट? ये ना, तो मेरी शायद दैट थिंग्स, हाँ, तो सारी कायनात, तो सो दैट थिंग वाज हैपनिंग विथ मी कि maybe God was great and he was giving me an opportunity saying that boss फिर से आ गया तेरे पास, अब तू झक मार के पड़ेगा करके, you know. And trust me, फिर सारी जो एटीकेटी सब चले, because you had to get first class in your last 4 semester, that is 5th 6th 7th 8th. इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर्स होते हैं ना. एंड मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ने लग गया. मेरे दोस्त भी चौंक गए कि ना इसको साला क्या हो गया करके, ये अचानक इतना पढ़ाई क्यों कर रहा है. And they used to tease also, क्या टॉपर बनना है क्या कॉलेज का. बट ठीक था, एम था, दैट जोश जुनून सब था लाइफ में. सो आई वेंट ऑन एंड आई डिड रियली वेल लास्ट 4th सेमेस्टर. एंड ट्रस्ट मी, एक्सीडेंटली टॉपर फर्स्ट 2 में भी आ गया एक्सीडेंटली, यू नो. इवन टुडे माय इंजीनियरिंग बैचमेट्स डोंट बिलीव दैट, बोलते साला कुछ सेटिंग किया होगा करके, यू नो. बट आ गए, पढ़ाई किया. And then the Navy interview happened. When I was in my 7th semester, I went for Bangalore for my interview, and everything repeated. SSB, you know, all those things which I went through. उन्होंने same question पूछा मुझे, क्यों join करना है? I was very open and clear. Uniform पसंद है, simple. So they were again, are you sure? I said yes. And no, that time there was no INET. It was a short service tech direct entry. So we never had written exams, luckily. Just one second. So I was there. So SSB interview हो गया, and then when the name was announced, interview में last day बहुत धक धक होता है, you know, like when you see your result ना, जैसे result में नाम आता है तो वैसे धक धक. And trust me, the first name announced was mine. 3 लोग select हुए. फिर से वो ना, देखे हो ना पिक्चर में, ऐसे पूरे फूल जागते हैं, अरमान जागते हैं, यहाँ से वहां से पूरे बटरफ्लाई उड़ते हैं, सब कुछ मुझे देखने लग गया. बोला अरे वाह, फिर से हो गया. एंड देन नेक्स्ट 5 days वाज मेडिकल. मुझे कहीं ना कहीं डर था ये साला फिर से वैसे होगा करके. एंड एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड. जब आइस पे आया तो सेम थिंग. नाउ व्हेन यू गो एज अ ग्रेजुएट एंट्री, थोड़ा लीनियंसी मिल जाता है. बॉर्डर केस था, मे बी एनडीए में दे हैड सम स्ट्रिक्ट दिस थिंग. दिस टाइम द मेडिकल ऑफिसर वाज अ एयरफोर्स ऑफिसर, विंग कमांडर थे. एंड उसने देखा, शायद उसमें वो 2 मिनट के लिए भगवान आ गया होगा कि बॉस क्लियर कर दे इसको, इसने सपना देखा है तो कर दे ऐसे ना. एंड व्हेन ही लुक्ड एट मी एंड आई डोंट नो, ही सेड यू रियली वांट टू जॉइन द फोर्सेस. आई सेड यस सर करके ना, आना जाना ही. रोया नहीं, नथिंग, नॉट अबाउट क्राइंग इन द. आई सेड दिस इज माय ड्रीम, यू नो, प्लीज गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, होपफुली. एंड पता नहीं क्या हुआ, उसने देखा, बोला बॉर्डर कैसे क्लियर कर दिया. ही सेड ओके डन. ट्रस्ट मी, वो होता है ना जो सपना पूरा होना. अब मैं सपने के बहुत करीब था. देन देयर वाज अ मेरिट, देयर कम्स अ मेरिट लिस्ट, यू नो. मेरिट में भी नाम आना चाहिए, अगर नहीं आया तो एवरीथिंग गोज फॉर अ वेस्ट. सो when the merit list came out, so I was all India ranked 4th in that merit. Luckily everything worked for me. And trust me, physical test is in जो ग्रुप टेस्ट होता है उसमें जीटीओ टेस्ट में होता है, यू नो. ये खत्म हो गया, मेरिट लिस्ट में आ गया. नाउ कम्स द बिगेस्ट ड्रीम. सो नेवल एकेडमी पहुंच गए, यू नो, आईएनए, इंडियन नेवल एकेडमी.
तभी गोवा में होता था, दैट वाज 98-99 एंड नाउ स्टार्ट्स द थर्ड फेज ऑफ माय लाइफ. एकेडमी लाइफ इतनी टफ होती है, इतनी टफ होती है, यू वुड हैव सीन इन एनी मूवी, यू नो, इतनी टफ होती है क्योंकि वहाँ आपका ईगो को क्रश कर देते हैं. फर्स्ट डे जब मैं पहुंचा तो एक काला ट्रंक होता है, टिपिकल फौजी मूवीज में देखे होंगे, यू हैव टू टेक योर ट्रंक. जैसे गेट पे पहुंचा, इमेजिन 4th ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी भी था मैं लास्ट ईयर में, एंड पूरे एकदम पॉश में होते हैं ना, जूनियर्स को ऐसे दौड़ाते रहते हैं हम 4th ईयर में. वहां से यू आर गोइंग टू एकेडमी जहाँ पे यू आर द जूनियर मोस्ट, यू नो. पहला दिन ही आपका, इन मलयाली, यू नो, इन केरला में, मेरे फैमिली में ऐसे है कि till your father dies you don't take out your mustache, you know, so that's a tradition. So my mom told me कि तू कहीं भी जाएगा तो एकेडमी हो या कहीं पे, उनको बोलना मूंछ मत निकालने. So there is इकबाल भाई बोल, इस्माइल भाई, एकेडमी का बार्बर, he is most powerful person in the academy. मैंने उसको जाके जब बैठा उसके सामने तो बोला कि अंकल ये ऐसे ऐसे, बोलता अरे बाढ़ में क्या ट्रेडिशन. अगला 59 सेकंड में एवरीथिंग वाज ओवर, बाल पूरे जीरो कट, एवरीथिंग. एंड हियर वाज द फर्स्ट शॉक ऑफ माय लाइफ. अपने आप को पहचान नहीं पा रहा था. देखते हैं ना, इफ यू सी माय इंस्टाग्राम एंड ऑल, यू कैन सी माय अर्लियर फोटोज, एकेडमी फोटोज, यू नो. सो दैट वाज द फर्स्ट शॉकर. उसके बाद तो शॉक पे शॉक लगता गया. रात को उठा के पनिशमेंट. आप लोग कितने लोग ऑमलेट वगैरह, ऑमलेट खाते हैं जो नॉन वेजिटेरियन, एगिटेरियंस है, कितने लोग ऑमलेट आप नाइफ, फोर्क, स्पून, पेपर, सॉल्ट डाल के खाते हैं ऐसे, यू नो, सजा दजा के, कितने लोग खाते हैं? सही है, बहुत सारे लोग हैं. सो जो खाते हैं उनको मेरा नमस्ते, प्रणाम. आप लोग बहुत बड़ी हस्ती हो, यू नो. मैं नहीं खाता, मैं तो एकदम अभी भी वैसी रांटी और काउटी टाइप्स हूँ. अभी फौजी हूँ, ऑफिसर हूँ एंड ऑल. स्टिल व्हेन यू गेट opportunity at home, so हाथ से तोड़ फाड़ के, you know, like bread and this thing. So academy teaches you, they teach you etiquette. Naval Academy. So our breakfast time used to be 7 minutes when you go initially. 7 minutes, you know. 7 minutes में you have to choose your fork, you have to choose your knife, and there is no one fork. वहाँ 3 तरीके के fork होते हैं. गलती से भी आपने गलत fork उठा लिया, so your breakfast is over that day का. You know, initial few days, आपने गलत कटलरी उठा लिया, your breakfast is over, your plate is closed. तो पहले 15-20 दिन तो आप भूखे मरते हो, मतलब, you know. So that is how the academy works. नहीं तो किसी चीज अगर आपको आसानी से मिलेगा ना, you won't, you know, strive for it. So they teaches you that way. और फिर जब आप बैठते हो आपके आजू बाजू, there are seniors sitting, you are the junior most. आपके लेफ्ट में एक सेकेंड टर्मर होगा, सामने एक 4th टर्मर, 3rd टर्म. एकेडमी में टर्म्स होते हैं ना, एंड उनका हल्का सा कान वाला रैगिंग चालू होगा कि पिक दैट अप, यू नो, ईट इन अ स्क्वायर टाइप. स्क्वायर मील बोलते हैं, मतलब ऑमलेट ऐसे खा तोड़ के, यू हैव टू ईट इन अ स्क्वायर फॉर्मेट, ऐसे करके स्क्वायर. फिर बोलेगा सर्कल, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, जो भी उसके दिल में आता है. फिर कोई आपको बोलेगा यार ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल लग रहा है, सो स्टार्ट अगेन. So by that time you realize 7 मिनट हो गया होता है, then okay goodbye, close your plate, go करके, you know. So अपने आप पे तरस आएगा आपको, you know. आपके टेबल पे एकदम एग्जॉटिक ब्रेकफास्ट होगी जो आपने कभी नहीं देखा ना, ताज के बफे में होता है ना, वैसे टाइप खाना मिलता है वहाँ, बट आप खा नहीं सकते हो. आपके मुंह से ऐसे पानी छूटता होगा कि काश मिल जाए टाइप्स, you know. 7 minutes is over, everything is over, and then there is so many things happening. कोई कैसे टॉर्चर करेगा कि यू नो, सडनली आपने किसी की आंख में गलती से देख लिया, वो सीनियर होगा तो बोलेगा व्हाई आर यू लुकिंग एट माय आईज, हाउ डेयर यू लुक एट माय आईज, उसके लिए पनिशमेंट. फिर 3 दिन के बाद वही बंदा सामने से आएगा, आप मुंडी नीचे करके जाओगे तो ही विल कॉल यू, व्हाई डिडंट यू लुक एट माय आईज, क्या मैं इतना खराब दिखता हूँ, उसके लिए पनिशमेंट. सो यू आर ऑलवेज इन अ कंफ्यूज स्टेट, हर तरह से लगी पड़ी हुई है, यू नो, एंड यू आर ऑलवेज रनिंग. सो एकेडमी में व्हेन यू आर द जूनियर टर्म, यू डोंट गेट टू वॉक, यू ओनली हैव टू रन. खाना खाने के लिए भी रन, क्लासेस के लिए रन, स्विमिंग पूल के लिए रन, परेड के लिए रन, ओनली रन. फिर 4-5 महीने के बाद व्हेन यू हैव डन समथिंग ग्रेट, आप थोड़े यू नो कुछ अचीवमेंट होता है तो यू गेट अ प्रिविलेज ऑफ वॉकिंग.
बोलेगा you get a walking privilege. So funny thing. And then academy sleeps at 9 o'clock, 10 o'clock. रात को 10 बजे एक ब्यूगल बजता है, कोई भी फौजी मूवी में देखो, और उसके बाद सबको सोना पड़ता है. 10 बजे academy closes and 10:30 academy starts again. रात का सेशन, अनऑफिशियल सेशन, वो पनिशमेंट सेशन होता है. सुबह का जिसका भी खाता होता है ना, कोई कबर्ड पे पनिश पुल ऊपर चढ़ा होता है, कोई मुर्गा बना होता है. इसलिए मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, मुर्गा इज द मोस्ट रेस्पेक्टेड थिंग इन आवर लाइफ. यू नो, कोई कहीं गटर में रोलिंग कर रहा है, रोलिंग, सो मेनी थिंग्स हैपन. फिर आपको नींद नहीं मिलती है, कोई नींद सोने नहीं देता है. नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू हैव टू गो टू द क्लासेस अगेन. जो मॉर्निंग एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल. पीटी पे भी जाना पड़े. आप अपने आप पे तरस खाओगे. एक ऐसा स्टेट आएगा ना, आप अपने आप को आईने में देख के बोलोगे कि क्यों मैं आया करके. यू नो, मैं तो अच्छे मजे कर रहा था इंजीनियरिंग के बाद, क्यों मैं आया. यू विल कर्स योरसेल्फ. बट ट्रस्ट मी, वो जो 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद जो भी एकेडमी टाइम है, आप चैंपियन बन गए होते हो. ब्रेकफास्ट आपका 4 मिनट में खत्म. कौन सा फोक, कौन सा क्या ला भाई ला करके. यू नो, 1 ऑमलेट खाना है, 2 ऑमलेट खाना है, सब खत्म. 4-5 मिनट में 2 मिनट लग्जरी टाइम होता है आपके पास. So even today I can eat my breakfast in 5 minutes. You know, my wife always say, क्या कर रहा है तू करके ना, ऐसे भी कोई खाता है क्या. You know, so that is how the academy teaches you. So cutlery, fork, wine, ये plate open, plate. So एक बहुत प्यारा तरीका है plate open and plate close का. You know, when you finish your food, if you keep your fork and knife like this straight, that means your plate is closed. Okay. And when you keep like this cross, that means it is open. तुम अभी भी खाना खा रहे हो. पहले हम गलती से ना, ऐसे खाना होता था, गलती से हम ऐसे रख देते, वो पीछे से वो स्टीवर्ड आके लेके चला गया, और उसमें कुछ अच्छा होता था, मतलब अबे कहाँ जा रहा है टैक्स ना, बट गॉन. So you learn. Okay, so many stories. Probably you can write a book on academy and punishment. So I thought I'll share with you. Now comes the golden moment of your life. ये ध्यान से सुनना, आप सभी लोग सुनना ध्यान से. There is something called passing out parade. You know, passing out parade. तो इंडिया का richest man कौन है? अंबानी. You know, मित्तल, anybody. उनके पास हर घंटे में वो लोग करोड़ों कमाते हैं. 1 घंटे में, लॉकडाउन में 1 मिनट में 90 करोड़ कमाते थे लॉकडाउन में. That was their work. But trust me, वो passing out parade का मोमेंट अगर अंबानी खुद के लिए या उसके बच्चे के लिए भी खरीदना चाहे, they can buy the entire मुंबई. हीरा नंदानी खरीद लेगा, ये खरीद लेगा. They cannot buy that moment. You know, that moment is earned. तुम हजार लाख करोड़ भी दे के उन्हें खरीद सकते हो. That moment is earned. Passing out parade में क्या होता है? After so much of this thing, you cross that अंतिम पग. It's called अंतिम पग. वो जब क्रॉस करते हो, ऊपर से हेलीकॉप्टर और डॉनियर जो प्लेन होता है नेवी का, आपके ऊपर फूल बरसाते हैं. इमेजिन, दुनिया में कौन से जॉब में, कौन से प्रोफेशन में आपको दैट डॉनियर आप पे फूल बरसाते हैं, ऐसे बरसाते जाते हैं. देन यू गो इन अ स्लो मार्च विद अ बैकग्राउंड सॉन्ग कॉल्ड ऑल लैंड सैंग. एंड जब आप अंतिम पग क्रॉस करते हो, शो मी वन आर्म फोर्सेस ऑफिसर हु डोंट क्राई. Everyone cry. सबके आंख से आंसू निकलता है. That's the greatest moment of your life. एक तो एकेडमी का रगड़ा से खत्म हो रहा है, and then you're going to become an officer in next few moments. That is called अंतिम पग. When you cross अंतिम पग, जब ये फूल बरसना सब हो जाता है, then you take the पहला कदम. It's called पहला कदम. You know, पहला कदम लेके अभी गोल्डन मोमेंट आता है. You know, ये जो मोमेंट है, ये अगर टुडे मे बी टुमारो इफ आई फॉरगेट एवरीथिंग इन लाइफ, मैं अगर बूढ़ा बन जाता हूँ, सब भूल जाऊंगा, अल्जाइमर हो जाता है, सब याददाश्त को, इवन आई विल फॉरगेट हु इज माय वाइफ का नाम भी भूल जाऊंगा. लेकिन ये मोमेंट मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा. पासिंग आउट परेड. और सो आफ्टर पासिंग आउट परेड, योर पेरेंट्स स्टैंड नेक्स्ट टू यू. योर मदर ऑन द लेफ्ट, फादर ऑन द राइट. ओके, आपके एप्यूलेट पे सफेद कपड़ा होता है. सो व्हाई मदर ऑन द लेफ्ट? बिकॉज मदर इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट. सो दैट इज द लॉजिक. यू नो, सो ट्रेडिशनली मदर हैज टू बी ऑन द लेफ्ट. और फादर को तो कोई पूछता नहीं, एज यू नो. मैं मेरी डॉटर को भी बोलता हूं, अरे मम्मी के पास ही रहते हैं हमेशा टाइप्स. यू नो, सो फादर ऑन द राइट,
both of them with a bugle, एक song बजता है और वो लोग को white कपड़ा उसके से निकालते हैं, and there comes the golden epaulette. आपके कंधे पे golden epaulette, वो दुनिया का सबसे बड़ा चीज होता है. You become a commission officer. उस मोमेंट से you are no more the son and daughter of your parents. You know, for Navy it's epaulette, for Army it's stars, and you know, उस मोमेंट से you are no more the son and daughter of your beloved parents. In addition to that, उन्होंने आपको देश के लिए समर्पित कर दिया. That's the tradition. And you take a oath. Oath ceremony होती है. Oath ceremony के बाद, and you are so happy, you know, because आपको वो मिल गया, you know. And then आपके सामने वो सारे लोग खड़े होते हैं जो एकेडमी में आपको सिखाया. उस्ताद बोलते हैं ना, ड्रिल उस्ताद जो आपकी बजाते हैं एक साल में एकेडमी में. दे ऑल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू. दे आर नॉट ऑफिसर्स, दे आर अदर रैंक. वो सब खड़ा रहेंगे. ट्रेडिशन के हिसाब से यू एक्सचेंज, यू नो, आइदर कॉइन और सिल्वर कॉइन एंड ऑल उनको देते हैं. दे विल सल्यूट यू. एक साल वो आपकी पूरी बजाए होते हैं. दे विल सल्यूट यू, ऑल ऑफ देम. यू सल्यूट देम बैक एंड दे विल टेल यू कि सर इस सल्यूट की कीमत रखना. Now you are going to be an officer of this great armed forces, so behave yourself. ये रैंक चढ़ते ही तेवर नहीं बदलना चाहिए, you know. So you have to be humble, you have to be amongst your people, you have to respect people, you have to earn respect, not because of your rank, because of the person who's inside that uniform. रैंक अगर आप पहन के अगर आपने अर्न किया है तो हक से आप सल्यूट मांग सकते हो, बट वो कितना दिन चलेगा. एक बार वो रैंक आप रिटायर हो गए कोई आपको कुत्ता भी याद नहीं करेगा, यू नो. सो यू हैव टू बी अ पर्सन हु रिमेंबर्स someone, everyone remembers that person. So even after 12 years of my away from Navy, I've left Navy 12 years back. Even today when I go to naval establishments where I have worked in the ship, आज भी लोग सल्यूट करते हैं, because not because I am great or something, because of the values ingrained in me through my instructors. वो जो मेरे ड्रिल उस्ताद थे, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर. एंड आदमी का अच्छा, आदमी या औरत या जो इंसान है उसका अच्छा होना इम्पोर्टेंट है. औहदा, रैंक, यूनिफॉर्म, दिस डजंट मैटर, टू बी वेरी फ्रैंक, यू नो. एंड देन वी पास आउट ऑफ एकेडमी. तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग क्या था कि आई पास आउट ऑफ एकेडमी और इट वाज 1999. नाउ कम द फेमस कारगिल वॉर. सो ऑल ऑफ यू नो कारगिल वॉर, उसमें मूवी बनी है, लक्ष्य मूवी है, so many things. So not many of them know that Kargil war was a tri-services war. Army, Navy, Air Force, तीनों ने. So Army called it as Operation Vijay, Navy called it as Operation Talwar, and Air Force called it as Operation Safed Sagar. ये तीन. Okay. कारगिल वॉर क्यों हुआ था? आप लोग मूवी देखिए, LOC, लक्ष्य एंड ऑल दिस मूवीज. ये क्या हुआ था कि मार्च 99 में we were trying to, you know, offer friendship to Pakistan. Nawaz Sharif and Atal Bihari Vajpayee ji, they were, you know, friendship बना रहे थे. लेकिन पीछे जनरल परवेज मुशर्रफ पीछे से आके he was building up a army at the Kargil and Turtuk and Batali के sector ऊपर. Unfortunately, our intelligence failed. We somehow slept over there. You know, there was a lacuna there. और ये लोग ने build up कर लिया. तो एक बार क्या हुआ, एक शेपर्ड होता है ना, शेपर्ड इज लाइक खबरीज. मुंबई में खबरी होते हैं ना, जो आके बोलते हैं कि बॉस ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है. तो शेपर्ड्स इज खबरीज ऑफ आर्मी. तो उन्होंने बोला कि वहाँ कुछ तो मोमेंट चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है. तो आर्मी बोला छोड़ यार, कुछ नहीं होगा, ये अभी तो हम लोग वहाँ खाना खा रहे हैं, गले मिल रहे हैं, क्या होगा करके पाकिस्तान क्या. बट इट वॉज अ फेलियर ऑन आवर इंटेलिजेंस पार्ट. एंड देन वी सेंट आवर one officer and 5 soldiers to go and see what is happening over there, you know. And if you remember Lieutenant Saurabh Kalia, पढ़ो कभी उसके बारे में, he is my batchmate, batch equivalent. So Lieutenant Saurabh and 5 people went there. Unfortunately, Pakistan captured them, you know, breaking the rules of Geneva Convention. हमें मालूम भी नहीं. And we were searching for Saurabh. बाद में कुछ 20-23 days के बाद we found Saurabh and 5 people. उनके they tortured him very badly, you know. जबकि वॉर भी नहीं था, बस ऐसी पकड़ के उनके दोनों आंख निकाल दिए, टांग काट दिए, पूरे बदन की हड्डी तोड़ दिए, पूरे बदन पे सिगरेट से जलाए, कुछ 200 burn marks, and all 5 or 6 of them were killed, you know. So when we got their body,
It was really shocking for us. How can someone do that? How can someone do that? And Saurabh was my batchmate, so batch equivalent. So it was really tragic. Even today, it बोलते हैं ना, खून खौलता है आज भी. इस चीजों के लिए कभी बोलते दुनिया भाई भाई बन सकता है पाकिस्तान से, शायद एक फौजी कभी नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ ऑल दिस. एंड दैट डे वी डिसाइडेड, हमने पाकिस्तान को बोला, बॉस तुमने साला पहला गोली चलाया ना, नाउ वी विल डिसाइड कि लास्ट गोली कब हम चलाएंगे करके, कब हम बंद करेंगे. एंड दैट वाज द जेनेसिस फाउंडेशन ऑफ दिस कारगिल वॉर. एंड इमेजिन आपके जैसे यूथ, पीपल लाइक एज यंग एज यू, मे बी आपसे थोड़े बड़े, 23, 24, these are the people who won war for us. You see Vikram Batra, sir was 2 years senior to me, Manoj Pandey 6 months senior to me, Anuj Nair 6 months senior to me. All of them we were all आसपास के. ये 25, 23, 24 बरस के बंदों ने वॉर जीता है, कारगिल वॉर. They are the people who won war for us. परमवीर चक्र, संजय कुमार, गूगल करना, 19 years when he got परमवीर चक्र, he was 19 years. 19 years में लोग क्या करते थे लॉकडाउन के पहले? क्या करते थे? टिकटॉक बनाते थे ना. बहुत सारे हमारे महान हस्तियां तो टिकटॉक बनाती थी 19 years में. So these are the, you are a different breed. All of you are here to listen to me. That shows you are very, very responsible. And Vikram Batra sir, ye dil mange moria, people are raising all those things, hands. So these are the youth. 23-24 साल. क्या होता है कि जब एकेडमी से आप 23 साल में, जब बोलते हैं ना, हम लोग जनरली ऐसे बोलते हैं, जब आप ग्रेजुएट बन के 23, 22 के बाद बाहर आते हो, supposedly you are from a well-to-do family, तो your parents will gift you a car or a bike, बोलेगा ले बच्चा ग्रेजुएट हो गया, ऐश कर. जब हम एकेडमी से ग्रेजुएट होते हैं 22-23 साल पे, एज अ फाइटर पायलट, व्हेन आई एम अ फाइटर पायलट, मुझे क्या गिफ्ट में मिलता है? 2000 करोड़ का MiG-29 चला उसको करके. दैट इज द डिफरेंस, एक एक्टिवा चलाने में और एक फाइटर पायलट का प्लेन चलाने में. सो दिस इज नॉट अ करियर, दिस इज लाइफ. आर्म फोर्सेस इज लाइफ. सो कारगिल वॉर वाज गोइंग ऑन. तो मैं जैसे एकेडमी से पास आउट हुआ तो वी वेर टू डू आवर यंग ऑफिसर्स कोर्स. तो हमारे सारे कोर्स बंद कर दिए एंड ऑल ऑफ अस वेयर टू रिपोर्ट ऑन वॉरशिप. आई वाज 23 years old. तो फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग ऑन अ वॉरशिप. और आई हैड अ गर्लफ्रेंड, अब मेरी वाइफ है 16 years की. सी आई वाज स्टेबल गाय, सेम गर्लफ्रेंड सेम वाइफ, वैसे 16. सो आई वेंट ऑन टू रिपोर्ट टू वॉरशिप. एंड जब रिपोर्ट किया तो देयर इज अ ट्रेडिशन, अब जूनियर मोस्ट ऑफिसर से कमांडिंग ऑफिसर जो होता है जहाज का, दे हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर नेक्स्ट डे. तो मुझे ऐसे पूरा पूछा सब. एंड ही वाज वेरी फेरोशियस ऑफिसर, कमांडर थे बहुत फेरोशियस. मेरी ऐसी फट रही थी उनको देख के ना, इतना सारा रैंक विंग देख के. एंड मेरा एक पिद्दू सा रैंक था, छोटा सब लेफ्टिनेंट का. एंड ही वाज विद ऑल दोस, आई वाज सिटिंग विद हिम. एंड देन आफ्टर एवरीथिंग ही सेड, ही आस्क्ड मी, डू यू नो वेयर वी आर गोइंग? सो आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि मैं शिप पे अपना ट्रेनिंग करने आया हूँ. तो देन ही सेड कि boss, we are going for war. This is the so-called Kargil war, and we are in Operation Talwar करके. Now trust me, जब बोलते हैं ना, सब लोग बोलते हैं ना कि war है, ये करेंगे वो करेंगे, boss पहले तो डर से फट जाती है सीधा. Same thing happened with me also. Fear is an integral part of us, whether you like it or not. एक अगर कुत्ता आपके पीछे पड़ जाएगा ना, सबसे पहले आप भागोगे. आप कोई भी टाइगर हो, फिर जाके सांस लेने के बाद यू विल बी लाइक, ओके ठीक है, अब मैं उसको डंडे से मारता हूँ. सो दैट फियर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल ऑफ अस. सेम थिंग हैपेंड विद मी. सो इट वाज फियर. फिर जब व्हेन इट संक इन, सब कुछ दिमाग से पास होता है, यार 23 साल का हूँ मैं, अभी कहाँ मरने जा रहे हैं करके. वॉर है, अभी तो जिंदगी चालू हुई, फैमिली फाइनेंशियली मुझे थोड़ा ये करना है, गर्लफ्रेंड है, सो मेनी थिंग्स. एंड तुम मुझे बोल रहे हो, ऐसे भी नहीं कि मैं कोई तोप तलवार हूँ, तुम तो जबरदस्ती का पकड़ के डाले हो करके. ऑल दोस थिंग्स पासेस इन योर माइंड. Then after 1-2 hours it sinks in कि यार इसी के लिए तो हम फौज ज्वाइन किए थे ना. फौज टाइम पास मौज के लिए तो थोड़ी ना ज्वाइन किए थे. यू हैड ज्वाइन फॉर अ वॉर, फॉर अ सिनेरियो, एंड दैट इज व्हाई यू आर हियर. फिर वो सिंक इन हुआ कि बॉस अभी तो जाना है वॉर में. एंड देन एवरीथिंग चेंज्ड.
सो शिप में कैसे किलर शिप्स, वॉर शिप्स, जो मैं जिसमें था, बहुत छोटे छोटे शिप्स होते हैं. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यू नो. जब हम अर्थ पे हैं, अभी नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे है, तो आवर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स लाइक ऑन ऑफ ऑल ऑफ अस. जब हम बैठ के सुन रहे हैं तो वी आर स्टेबल. शिप ऐसे ऐसे हिलता है, ऐसे 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 ऐसे. तो पहला 10 दिन एडजस्ट करने में जाता है, यू नो. तो हमारा कैसे था, आई वाज द जूनियर मोस्ट ऑफिसर इन दैट शिप. तो शिप में बंक्स भी नहीं थे सोने के लिए. सो वी वर गिवन अ प्लेस इन नीचे के कंपार्टमेंट में कि वहां सो जाओ करके, यू नो. एंड हम लोग ऊपर आते थे 7 दिन, पहला 7 दिन नहाया नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज आप प्यूक करते रहते उल्टी, बिकॉज ऑफ दी सी सिकनेस. एंड सिर्फ खिचड़ी कोई आके खिला के जाता है मुंह में, कि वो भी खाने का ताकत नहीं हो. 7-8 days के बाद द फर्स्ट टाइम व्हेन द ब्लड कम्स आउट ऑफ माउथ, वॉमिट कर करके आपका यहाँ पूरा फट जाता है, तो खून आपके लिप्स पे खून आ जाता है, यू नो. तो आई रिमेम्बर वन ऑफ माई सीनियर, मैं उसको बोला कि यार लिप्स पे सर खून आ रहा है. तो आई वॉज लाइक, अब ये बोलेगा अरे यार बेचारा ऐसा नहीं होना है. एंड ही वॉज सो हैप्पी, बोला कांग्रेट्स, यू नो. एंड आई वॉज लाइक, मुंह से खून आ रहा है एंड यू आर ब्लडी टेलिंग मी कांग्रेट्स फॉर व्हाट. एंड से अब तू सेलर बन गया, यू नो. नाउ यू आर अ सेलर हार्डकोर बिकॉज यू हैव वॉमिटेड ब्लड. एंड दैट इज हाउ द इंसेप्शन हैपेंड. Thereafter, since I was a technical officer, I'm an engineer. फिर next 40 days we were close to Karachi. You know, today the significance is 1971 war. हमने ठोक दिया था पाकिस्तान को 1971 में. See what happens whenever Navy participates in a war, the map changes. You know, इसलिए हम participate करते नहीं है ज्यादा. जब हम करते हैं तो पूरा नक्शा बदल जाता है. 1971 में पाकिस्तान कराची की ठुकाई कर दी थी पूरी पाकिस्तान की, तो आज भी वो सफर कर रहे हैं, यू नो. 1999 we were close to hitting Karachi, you know, and that first 4 warship जो थे, 35 warships थे, पहला 4 जो warship था, I was in one of them, you know, in that. ऐसे नहीं कि तोप तलवार कोई ग्रेट नहीं, बस बाय लक था या जो भी बोलो, मैं था उसमें, यू नो. सिंपल, एज सिंपल एज दैट. तो वी वर वेटिंग फॉर द ऑर्डर टू हिट कराची. हमने इतना ये कर दिया था, उनका पूरा रूट, ट्रेड रूट बंद हो गए थे. उनकी कंट्री में 6 दिन का फ्यूल था और 6 दिन का कुछ खाना था, सब रूट बंद कर दिए थे. दे वर स्कैर्ड, लिटरली स्कैर्ड, यू नो. एंड वी वर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट. सी वॉर इज अ डिस्ट्रक्शन, नोबडी लाइक्स वॉर, क्योंकि आप 20 साल पीछे चले जाते हो, 20-25 साल. बट वी वेर हियर फॉर अ वॉर, तो वी वेर हियर फॉर. सो कराची का लक अच्छा था, नहीं तो कराची सिर्फ स्वीट्स और बिस्किट में याद करते लोग. वो सिटी पूरा उड़ जाता है उस दिन, यू नो. एंड देन दैट्स हाउ. देन द नेगोशिएशन हैपेंड, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, एंड देन द वॉर वाज कॉल्ड ऑफ. सो पाकिस्तान ने सब सरेंडर कर दिया. सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंस इज अलोंग विद द कारगिल वॉर, व्हाटएवर हैपेंड, नेवी एंड एयरफोर्स प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यू नो. एंड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन दैट वॉर, वो जोन में था 40 दिन. That's why I wear the Kargil War Medal. आपने मेरा यूनिफॉर्म देखा होगा तो, if you have seen my photos in the promo, I wear a star medal, Kargil War Medal. Okay. बस सिलसिला चलता रहा यूं. I did my post graduation from Navy. नेवी में पढ़ाते हैं, मुझे लगा था कि यहीं पढ़ाई खत्म हो जाती है करके, बट वो पकड़ पकड़ के पढ़ाते हैं, यहाँ नहीं वहाँ नहीं. So they made me, you know. That's why as my mother said, सब कुछ बोलते ना, ये किया था, मदर हैड प्रेडिक्टेड, ये बहुत बच्चा बहुत पढ़ेगा करके, यू नो. सो वैसे ही हो रहा है अभी भी. सो नेवी डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन, देन डबल एमबीए. दे टीच यू, दे गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, यू नो. एंड फिर 2001 में फिर से वॉर होने वाला था पाकिस्तान में. इट वाज कॉल्ड ऑपरेशन पराक्रम. एंड दैट टाइम आई वाज बिट सीनियर. नाउ आई वाज हैविंग आइडिया ऑफ मिसाइल्स एंड ऑल. तो काफी मूवमेंट्स हुई, बट वो भी वॉर हुआ नहीं. सो दैट्स ऑपरेशन पराक्रम. And बस सिलसिला चलता रहा. I served in 2 ships and many establishments. काफी सीखे, learned a lot from juniors, learned a lot from seniors. So learning never has. अगर मुझे ईगो हो गया कि मैं एक एमटेक हूँ और you know ये नहीं करूँगा, मुझे आता है, you know. But trust me, जो फिटर्स और जो छोटे जो काम करते हैं, they know much better than us. We have degrees, but they know life, you know. So you have to learn from them. तो आपकी इज्जत करेंगे, फिर आपका डिग्री आपके लिए काम करेगा. So we learned, did all those. So I won many awards. I won the Chief of Naval Staff Commendation, probably the youngest officer to get all 3 awards in a span of 10 years.
Navy ne opportunity, Navy recommended me for permanent commission. All those things happened. But since my wife, she is also from Mumbai, born and brought up. She works with Larsen and Toubro. So her career was also important, you know. So you have choice was mine, you know. I would have served permanent commission, but at the same time, uska career khatam ho jata. So we took a balancing decision, and I finished my commission, short service commission from Navy on a high, very high, you know. अगर मेरे बैचमेट्स अभी कोमोडोर बनने वाले, that is brigadier equivalent, they are going to be soon, and I continued. My chances were 200% to become a commodore or a star rank, you know. So my batchmates are going to become a star rank. So that's how 10 years with Navy, and then you know, I have a beautiful daughter, 15 years old, and a family. I reside at Mumbai. Now the second phase of my journey started. I'm an author. I write. I blog. Masti Instagram. If you see my handle, I love fun, and most of you know, and my writing point is humor. So मेरे books भी वैसी हैं. And then I inculcated in that journey of fitness, because Navy छोड़ने के time I lost on health. I was detected with hypothyroid. I became 100 kg plus. So फिर से उतारना था, फिर से back to fitness, you know. And yes, embrace fitness. And marathon running became a passion. It requires time, effort. The marathon is 42 kilometers, and ultra marathon is above that. So last year I represented India in an ultra marathon, 89 kilometers of run, so in South Africa. So you have to complete in 12 hours. So I completed in 11 hours, 48 minutes. And today, if you see me, if you see my handles, it's all about books. It's all about Forge. It's all about motivation. It's all about fitness and some personal moments, you know. And today, I believe at the age of 44, December 12, I will be completing 44. I am close to my 90% fitness of what I was in academy, you know. I wanted to be a Marine Commando because I was posted in a Marine Commando base, and I used to train with them, but I never couldn't make it because being a technical officer and a short service, Navy thought it would be a waste of resource if they permit me to go for command. So कहीं ना कहीं वो खलकती आज भी कि I couldn't become. So fitness regime is very, very strong for me. So I'm at the 90% level of fitness what I was at the age of 23. So maybe in next 1 year I will reach to 100% of what I was at 23. You know. So today morning when I run a 10 kilometer, so my heart age was 23, you know. So it always feel good to connect it to young people like you. So age is just a number. अगर मैंने 44 का हूँ और मैं 80 साल का ऐसे लगा रहे मैं बूढ़ा हूँ करके, तो I will be 80 years. अगर आप 20 साल के हो, आप कुछ नहीं करते हो, आपको लगोगे आप 80 साल के हो. 80 साल वाला अगर सोचेगा मैं 20 साल का हूँ, तो you will be as good as 20 years, you know. So age is just a number, and learning never ends. So this was the short journey of my life, from a Mumbai chawl to what I am today. Whatever, you know, success जो भी है, I have a 3 BHK Edmund, गाड़ी है, ये है, वो है, all those property, ये वो, that doesn't matter. तो लाइफ में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए. तो जो ट्रस्ट ने मुझे हेल्प किया पढ़ाई में, जो टीचर्स ने मेहनत की, जो मेरा पहला मेंटर था, और मेरे सारे दोस्त, जो चौल में भी दोस्त थे, जो मस्ती करते, जो स्कूल में जिसके साथ बाहर खड़ा होकर टाइम पास करते थे, इंजीनियरिंग में जिसके साथ बंक किए, सिगरेट पिए, सब किए, everyone has a role to play in my life, you know. And the biggest of them is my mother, because she ingrained that education is important. And my wife, she's my biggest support. As I said, she was my girlfriend from long 23 years back, जब मेरे पास कुछ नहीं था हमारे पास, and we together we grew, together we struggled, together we fought, and we married. We have a beautiful kid, and I reside in Mumbai anytime. मुलुंड, आप लोग बॉम्बे के हो, सब आना चाहते हो कभी भी आ जाओ. और अभी तो since all of you are there, आप लोग इतने लोग हो, तो मैं ऐसे प्यार से अच्छे से बात करता हूँ. You know, as a speaker I have to, but I'm not like that. मैं बहुत मस्ती करता हूँ, गाली गलौज बहुत देता हूँ, typical फौजी types. तो कभी मेरे लाइव सेशन में आना, when Corona and all goes, if you are open to hear some swear word and curse word for Pakistan, you are welcome. मैं बहुत गाली देता हूँ, गुस्सा देता हूँ. अभी थोड़ा कोट विट पहना है तो पॉलिश लगता हूँ, अदरवाइज हूँ नहीं, you know. If you have invited, नहीं तो तुम लोग
अगर मेरा एक्चुअल लैंग्वेज स्टार्ट करूंगा तुम लोग लीव करके ऐसे ही बंद कर दोगे सेशन, बोलेगा यार भगाओ इसको करके, So this is me. I am as open as this. So my character is of Gully Boy Ranveer Singh, Gully Boy. Thank you so much. Thank you so much, sir. We would like to share a video. It's from YouTube, but we'd like to share it, and then we can move if anyone has some questions to ask you. If you have time, obviously, of course. Yeah, I can spend, because 9 o'clock I have a session again. I have to go home. I have to drive 45 minutes. And then I have to attend another session. आज Navy Day है ना, कुछ नहीं कर सकते हैं. We won't take much time from this. Yes. सूरज के सीने की धड़कन ये कहती है बढ़ने की, जिद तेरी नींदों में रातों में ख्वाबों में रहती है। तेरी ज़मीं है तेरा आसमां, तेरा है सागर तेरा ये जहां, तुझसे मुनासिब मेरे ख्वाबों का आशियां। तेरे में तेरे चला कारवां, तुझसे है रोशन मेरा नीला सा आसमां। है तेरी जीत है तेरा रौब है विजय तेरी जब भी रण है, तू बढ़ आगे तुझे डर किसका, तेरे साथ में डरता बचपन है। दीवार नहीं चट्टान है, वो लाल तेरा हर कण है, तू बढ़ आगे तुझे डर किसका, तेरे साथ में डरता बचपन है। दरिया में तेरा नया जोश तेरा नया खून, तेरी नई सोच बिजलियां गिरा तूफान उठा बारूद, तू तेरी धड़कन है। तू बढ़ आगे तुझे डर किसका, तेरे साथ में डरता बचपन है। तू बढ़ आगे तुझे डर किसका, तेरे साथ में डरता बचपन है। तेरा है सागर तेरा ये जहां, तुझसे मुनासिब मेरे ख्वाबों का आशियां। मेरी ताकत तू ही पासबां, पहरे में तेरे चला कारवां, तुझसे है रोशन मेरा नीला सा आसमां, मेरा आसमां। Yeah, nice video, very nostalgic. D50 fans, Ranvijay. I have worked on it, so very nostalgic. So we will open up for question for a few minutes if anyone wants to talk to sir. Yeah, it has to be few minutes. I'm so sorry. Yeah, you can sure. connect to me on Instagram, so I'm pretty active over there till the time my wife allows me. एक दिन पता चला वो भी चला जाएगा. Okay, so your Insta ID? It's Vijay Nair, Vijay Nair. एक ही विजय नायर है तो वो मिल जाएगा वहाँ पर. You can now unmute yourself and ask just for a few minutes. Sir has to go. My request is ऐसे पूछो क्वेश्चन अगर कुछ डाउट है which will benefit everyone. Don't ask one to one कि मुझे ये एंट्री वो एंट्री. That you can connect to me on Instagram. I can answer there. So there's one in chat box from Swarup Nair. He's asking that he's doing BCom, so can he join Navy? Yeah, see, unfortunately, क्या होता है कि other than engineering, these days other than engineering, बाकी streams को opportunities कम होते हैं, but ये नहीं कि नहीं है. You have plenty of opportunities. You have the logistics branch, you have the law branch. Pure BCom पे नहीं मिलेगा, but you have to do a post graduation.
for the logistics, for the education branch, and for the law branch. ये 3 branch के लिए it's open to you. Okay. There's one question, like, so what comes in mind when ship stops working during wartime? Like, one of ships stop working during Trident, and role of captain during that, and with regards to boosting crew's morale. See, it's all about our training. You know, we have been trained in academies. We know how to react on what situations. You know, ship is like एक जहाज होता है, तो we know, we prepare for the worst outcome. We don't prepare for the goody times. We always prepare for the worst outcome. So, इसलिए I was telling you, the man in uniform, the people should respect the captain, not his uniform. तो मैं कैप्टन हूँ, मैंने बोला कि जला दो किसी को तो जला देगा, मैं बोलूंगा कि कूद जाओ तो कूद जाएगा. That is the morale of captain. So if you know about Trident, first Commander Mulla, Captain Mulla, Mahendranath Mulla, वो शिप के साथ नीचे चले गए थे as per the tradition, So we was hit by torpedoes. I think Pakistan का there was Hangor, PNS Hangor, उसने मारा था. Unfortunately, in 1975, our submarine capability was much lesser than Pakistan. This is the news, because of various political issues. So, वो time पे it's all about CO. CO ने सबको बोला कि बचो, there is no point foolishly कि सब मरो. So CO made everyone evacuate the ship. And CO होता है captain, जहाज का सब कुछ होता है. He could have evacuated himself, but he preferred going down with the ship as the tradition of Navy. So you're prepared for it. ऐसे नहीं कि जहाज अचानक रुक गया तो क्या करोगे यार, ऐसे थोड़ी ना होता. गाड़ी अगर रोड पे रुक गया तो गाड़ी छोड़ के भागेंगे नहीं ना. So we have everything for that. Not to worry. So you spoke about the importance of having a backup plan while pursuing your dream. So, but what if we don't feel so strongly about that plan? See, if you don't have a backup plan, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, never be overconfident on something. Unless you are a son of, Ambani ties where you don't need to have a backup plan, अगले 10 पुश्तें आपकी खाते रहेंगे, तो then it's fine. If you're a normal, common Indian citizen, जो normal middle class हो, you need to have a backup plan. That is how things work, Hello. Hello. Sir, may I ask you a question? Yeah, please. Sir, in the journey of your life, आपका कभी moral down नहीं हुआ? और अगर हुआ तो फिर आपने खुद को कैसे हैंडल किया उस टाइम पे? Yeah, प्राची, see, हम सब इंसान है ना, all of us are human beings. मोरल डाउन हमेशा होते रहता है, ये नहीं कि नहीं होता, आज भी होता है. I have gone through depression. I said a phase आया था लाइफ में डिप्रेशन. So जब मोरल डाउन होता है ना, तब देखना है कि मुझे क्या ऐसी चीज है जो जिसके लिए मैं जी रहा हूँ. So you have to find that quotient for which you need to be motivated. अभी भी many time I feel low, तो I see my daughter and I know that I have to be there for her. Simple, Why I'm into hardcore fitness now, because I know I have to be there for my family. That is my biggest motivation these days. So, yeah. छोटू अच्छा डांस कर रहा है लॉलीपॉप लेके. Yes, so that was Hello, sir. Yes. Sir, I am having a question related to commission worthy scheme. So, sir, what is your ideology about commission worthy scheme and any personal memory you have to share with us related to the same? The commission worthy scheme is definitely one of the schemes for in the Navy for the other ranks to become an officer, and that scheme has been working wonderfully well. And I know a lot of my batchmates and a lot of officers, my juniors who have come from the commission worthy. Even there are Marine commandos there, couple of Marine commandos who were from the commission worthy, So it is tough, no doubt. It is tough. It is something like ACC entry in the army. It is tough, but it is not impossible. So go on. Agar if you are from, if you're serving in Navy and if you are non-commissioned rank, I think you must try. You must try. काफी लोग हैं, काफी लोग बने, नहीं है करके.
So there's one question. It's how to implement leadership qualities in our life. In ourselves. See, all of us have leadership qualities. All of us, each individual is born from a leadership quality, you know, has a live. वो यही है कि कब पहचानना है, when it comes. See, when what happens, any one of us, अभी कल को if I am going with my brother, sister, wife, or girlfriend, or boyfriend, उनको अगर किसी ने माँ कसम कुछ कर दिया तो you will not run away ना, you will defend, you will try your best. That there comes one of the qualities of your leadership. So ऐसे leadership के जो 12-15 qualities है OLQs जिसे बोलते हैं, so हम सब में कूट के भरा है. Only thing is it has to come at the right opportunity. So what happens in an MBA college or a naval academy or they groom you for that. They give you situations, you know, and the day you find that you are a leader, simple. So not to worry. अब आपके घर में भाई बहन होंगे, आपसे जूनियर, आपसे अब छोटा भाई बहन होगा या भाई होगा, तो द वे आप जो रोब जमाओगे ना उस पे, दैट इज लीडरशिप. फिर वो और वो जो आपका छोटा भाई या बहन गाली देगा आपको, दैट इज हिज लीडरशिप और हर लीडरशिप. तो लीडरशिप बराबर है. Sir, what message would you like to give? Suggest a Yeah, so last two questions, because I need to leave for home. Yes, yes. Okay, Sir, what sir. message would you like to give to the attendee? Aspirant. So wait, Prashant. Yeah, so I think I heard the question, what message I want to give. So message ये है कि आप सब लोग जो है, you know, all young boys and girls and see, मेरे में आपको देखो. So I am you. तो आप ये सोचो कि ये बंदा अगर बन सकता है सक्सेसफुल, मैं तो ये बंदे से कितना कई गुना ज्यादा अच्छा हूं करके, you know, I am that. So if a Lieutenant Commander Vijay Nair can become successful, तो मैं भी बन सकता हूँ. That is my message. Believe in you. Believe in you. सपने देखो, सपनों को साकार करो. ये नहीं कि सपने देख के बोलो चल सपना है करके, you know, तो फिर कुछ नहीं होगा. सपनों को साकार करो. और जब भी कुछ डाउट हो मेरे लाइफ पे देखो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स. एपीजे कलाम सर मेरे आइडल हैं, उनके लाइफ को देखो. सो मेनी पीपल आर देयर. नॉट वरी. इसलिए मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, हम सब स्पेशल हैं. वी आर स्पेशल. हम ऑलरेडी आ चुके हैं 3 इडियट. यस, लास्ट क्वेश्चन प्लीज. Hello. Yeah, last question. Whoever. Yes, yeah. sir, I am asking the last question. So actually you told कि जब तुम अपने भाई बहन के रोब जमाओगे तो that is your leadership quality. So sir, but what is the difference between leadership and bossy attitude? Like someone, like कोई भी बोलता है ऐसा कि bossy attitude और leadership में फर्क होता है. अगर मैं अपने भाइयों पे या दोस्तों पे या छोटे भाइयों पे किसी पे भी मैं रोब जमा रहा हूँ, so that is my bossy attitude. So what's the difference between bossy attitude and leadership quality? See, who's boss? Who's boss? First of all, you need to know the definition of a boss and a leader, you know. Yes, sir. तुम जब भाई के ऊपर रोप जमाते हो, difference, I'm telling you the difference. जब तुम भाई के ऊपर रोप जमाते हो, why it is leadership? Because कल को वो जो तुम्हारा भाई जब मुश्किल में होगा, वही भाई अगर उसको कुछ मार लगा या कोई उसको मार रहा है, you bloody will take the hell out of other guy. Now when you are a boss, और तुम अगर तुम्हारे जूनियर कोई होगा उसको कोई सताएगा, you will not bother also. बोलेगा जाने दे, let him suffer his fate. So when I said when you show that bossy attitude to your siblings because you care for your siblings. When I'm a boss, I may not care for my junior, but when you are a leader का काम क्या होता है, वो सबको साथ लेके चलता है. You know, फौज में हमें सिखाते हैं कि why at the age of 23-24 you are given a responsibility, because आपको जो आपके next level वाला बंदा है उसको वहां तक लाना. There is something called hand holding, there is something called second level. So फौज में ऐसे होता है. See, फौज और इसमें डिफरेंस क्या होता है कि अगर मेरे बंदों से मिस्टेक हुआ है फौज में, 99%, I am not saying कि 100%, 90% ऐसे होता है कि I will own that mistake. जब मिस्टेक होता है एज अ लीडर, आई ओन दैट मिस्टेक कि बॉस ठीक है मेरी टीम ने किया बट आई एम रिस्पॉन्सिबल. कोई सक्सेस होता है तो आई विल गिव द क्रेडिट टू हिम और देम, सेइंग कि इसने किया तो आई वुड हैव गाइडेड. कॉर्पोरेट में क्या होता है, बॉस होगा तो मिस्टेक होगा तो अरे इसने इसको निकालो, यू नो, क्रेडिट होगा तो मैंने उसको बताया, आई टोल्ड हिम टू डू लाइक दिस, यू नो.
This is the difference between a boss and a leader. Okay. Chalo, I think I need to leave now. Thank you. Okay. Thank you so much, sir. Thank On you, behalf sir. of all, thank you so much, sir. On behalf of whole NSS unit, we are delighted to have you as our guest speaker. Thank you, sir. Jai Hind. Thank you so much. Prashant. Jai Hind. Jai Hind. Thank you so much, sir, for this session, for taking time and for agreeing at the very last moment for this session. We know you have had sessions from the morning and you still have one session to go, but still you took some time for us. Thank you very much from the whole unit, from our POs and teachers who have joined us today. Thank you. Just one thing I would like to say, that what I has learned from the session is that we have to come out of a comfort zone. हमको लगता है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. You need to adjust ourselves in our life, and that is something very important that I have learned from this session today. So thank you so much. It was really a very inspiring session. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much for your kind words. Thank you. Yeah, so thank you to Team NSS. I must appreciate, see, again, I said you have been following with me for this session, though it was on a short notice, but I must appreciate the way it was planned. And to all of you, to 253 participants, whatever, I think 280 was the last number which I saw. The very fact that you are glued to me for last 1 hour shows that you are interested. No? नहीं तो बोलेगा छोड़ करके कौन इसको सुनेगा शाम को, you know, वैसे. So thank you so much and wishing you all a very best of luck in your career. And as I said in the beginning, what did I say in the beginning? Experience the experience of experiencing an experience. So my life is an experience for you to experience, you know, and somebody else's life is an experience for me to experience. So that journey continues. और life में आप कितने भी बड़े हो जाओ, tomorrow you may be the second Ambani. Come back, give back to society. All of us have to handhold each other, and then the world would be beautiful, you know, and that is what we have to do. So on this note, Jai Hind, thank you so much. Thank you so much. Shall I leave, Pallavi? Yes, sir, sure. Okay, bye-bye. Thank you for the Thank you session so much. again. Take care. For the rest of you, the feedback link has been posted in the chat box. Please fill out the forms. And once you fill it, you can leave the session. It's ended now. Thank you so much for attending.